Okay, good morning, students. Now we will continue with your first chapter. That day we discuss about the democracy. So that day we discuss the different types of the government also. Which are the different types of the government, like your monarchy, your dictatorship, and other different government. Now to now next in your chapter that is given the introduction to democracy. That we already discussed. Democracy derived from the two Greek words. That is demos plus krasia. Demos means peoples, Krasia means power. That means in the simple word, you can say democracy means power of people. And this is the democracy or authority of the people. Now different definition given by the different peoples for the democracy. Now, according to the Professor Sile, democracy is a government in which the everyone has a share. According to Sile, democracy is a government in which everyone have the share. Then according to the J.S. Mill, the democracy is a form of government in which the people, the whole people or the some numerous portion of them exercise the government power through the deputies periodically elected by them. According to J.S. Mill, democracy is a form of government in which whole people या तो सारे लोग या कुछ portion of the peoples will play important role exercise the government power. Then according to the Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, by the people and for the people. And according to the Abraham Lincoln, democracy क्या है? ऐसी government है जो by the people, for the people, उन्हीं के लिए सब कुछ है. Now the emergence of democracy. Now next we'll see the emergence of democracy. Emergence means from where the democracy was started, emerging कहाँ से start हुई थी. The emergence of democracy is not uniform throughout the world. The historical evolution of democracy or emergence of the democracy can be understood through the phase discussed below. The emergence of the democracy is not uniform throughout the world. That means throughout the world यूनिफॉर्म नहीं, एक जैसी नहीं, एक साथ डेमोक्रेसी नहीं स्टार्ट हुई थी. ये क्या हुई थी? फेस वाइज हुई थी कि किसी वर्ल्ड के किसी कंट्रीज में पहले हुई, उसके बाद में आई थ्रू द हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन. हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन मतलब हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन हुए थे, कुछ संग्राम हुए थे, लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी जो पहले रूलर्स चल रहे थे. उसके बाद में इनको फेस वाइज अलग अलग डेमोक्रेसी का इमरजेंस हुआ, डेमोक्रेसी का विकास हुआ. दैट द different phase we will discuss. First phase, the classical era, एंड विल डिस्कस अबाउट द ग्रीस कि फर्स्ट फेज जो क्लासिकल ईरा था कि फर्स्ट फेज में डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट हुई थी. द डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लोरिश्ड इन द ग्रीक सिटी स्टेट रीचिंग इज द fullest expression in ancient Athens. There are the citizens who were the member of the assembly participated directly in making the law. A democracy of this sort was possibly only in a small state where the people were politically educated, which are limited since a majority of inhabitants were slaves or non-citizens. Athenian democracy fell before the onslaught of imperial rule, as did other democracy in the early Italian cities. In this period and the Middle Ages, the ideal precursor to modern democracy, such as representation even, were developed. That was the first way. In the first time, democracy was started from the Greece, एंड वन सिटी फ्रॉम द ग्रीस दैट वाज द एथेंस की. एथेंस जो ग्रीस की सिटी थी उससे डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी. वहाँ पे लोग पढ़े हुए लिखे थे और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको बोलते फुल फॉर्म में थी कि ऑल ओवर द पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी वाज पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन मेकिंग द लॉ. बट दिस टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इन ए स्मॉल स्टेट्स. डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? जिसमें लोग डायरेक्टली रूल एंड रेगुलेशन बनाने में भाग लेते हैं. सब लोगों को एक साथ बैठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है क्या रूल रेगुलेशन बनाने हैं, वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्रीस के एथेंस से स्टार्ट हो गया था. बट ये बड़े देशों में जैसे हमारा देश है इसमें पॉसिबल नहीं है. इवन हमारे स्टेट में भी पॉसिबल नहीं है. इट इज़ पॉसिबल ओनली इन अ वेरी स्मॉल स्टेट.
That was the first phase of the democracy. Now, second phase, emergence of democratic ideas, beginning of democracy. वो फर्स्ट फेज था, वो उधर ही से ये रह गया। उसके बाद सेकंड फेज में डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट थी? एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया, कि लोगों में डेमोक्रेटिक आइडिया डेवलप होने लगे, एमरजेंस होने लगे, उनमें स्टार्ट होने लगे, एंड बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उधर से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी। दैट फर्स्ट वाज द इंग्लैंड। The story of the emergence of democracy, however, began towards the end of 18th century. In England, a popular revolt broke out in 1688, which put an end to the autocratic rule of James II. After this revolt, which is popularly known as the Glorious Revolution, constitutional monarchy was established. The power passed into the hand of the parliament, which laid down the foundation stone for democracy or democratic ideas. Then the story of foundation of democracy was start from the end of 18th century की 18th century के बाद ही 18th century के एंड से ही डेमोक्रेसी की एमरजेंस स्टार्ट हुआ था। इन इंग्लैंड वाट वाज द पॉपुलर रिवोल्ट हुई थी, एक बड़ा पॉपुलर रिवोल्ट, प्रसिद्ध संग्राम हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी। कब हुई थी? दैट वाज इन 1960 सॉरी 1688। In 1688, one revolt was taken place in the England to end the autocratic rule of James II. That was the one monarchy ruling system was there. राजा का शासन चल रहा था, राजा क्या नाम था? जेम्स सेकंड। और उसके अगेंस्ट लोगों ने विद्रोह कर दिया था, और एक फेमस विद्रोह हुआ था इन 1688। आफ्टर दिस रिवोल्ट, और उस रिवोल्ट के बारे में, उस संग्राम के बाद में क्या हुआ? ग्लोरियस, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की चला था कि उधर राजा रहेगा, बट वो भी किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि एक संविधान बनाया जाएगा, राजा नाम का रहेगा, पावर शिफ्ट कर दिया किसमें? ऑन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल बी इलेक्टेड थ्रू द people of that particular country, and from that revolution the foundation stone for democracy or for the democratic state was laid down। और उसी रिवॉल्यूशन से, उसी संग्राम से डेमोक्रेसी के आइडिया या डेमोक्रेसी की स्टोन फाउंडेशन किया था, उनको स्थापित किया गया था। इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1688 से। देन स्टार्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, धीरे धीरे और अलग अलग देशों में होता गया। देन इन द America it came. In 1776, the 13 colonies of America revolted against the British rule. There also, what happens in the 18th century, all over the world, British was ruling. सभी कंट्रीज में कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिश राजा रूल कर रहे थे। यू हैड द नेम आल्सो, एक मुहावरा भी आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के टाइम में कभी सूर्य छिपता नहीं था, सूरज अस्त नहीं होता था। क्या मतलब होता? कि क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपना राज कर रहे थे। तो आप देखते हो कि जो पृथ्वी है वो गोल है, उसमें एक हिस्से में दिन रहता है तो दूसरे हिस्से में रात रहती है। लेकिन अंग्रेज सब जगह कर रहे थे, इसलिए अगर उनके एक कहीं किसी कंट्री में रात हो रही तो किसी कंट्री में दिन भी हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि भाई अंग्रेजों के टाइम कभी सूर्य राज में सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि अमेरिका पे भी आज जो सुपर पावर है उसमें भी इंग्लैंड ही राज करता था। तो क्या हुआ इन सेवन, जैसे इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ, उधर क्या कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई, कि राजा तो नाम के लिए रह रहा था, लेकिन जो पावर थे वो सारे के सारे किसको हैंड ओवर कर दिए गए थे? पार्लियामेंट को हैंड ओवर कर दिए। और पार्लियामेंट के मेंबर्स लोगों द्वारा इलेक्ट होके आ रहे थे, तो उधर क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मोनार्की हो गई थी। उसके बाद में अमेरिका में भी 1776 में 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल करे थे उसके अगेंस्ट उन्होंने संग्राम स्टार्ट कर दिया, लड़ाई स्टार्ट कर दी। दिस रिवोल्ट लेड टू द एंड ऑफ द फॉरेन रूल, दैट वाज द ब्रिटिश रूल इन अमेरिका। और इस रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? जो फॉरेन रूलर्स रूल करे थे अमेरिका में, कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स वाज रूलिंग। दैट वाज एंडेड ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन। आफ्टर दिस रिवोल्ट, which is popularly known as the American War of Independence. What is called it? It is what called the American War of Independence. When it was started? It was started in 1776 by the 13 colonies initially. And after this revolution, the democratic government was
set up or established in America. When the America got independence, or when the democratic government established in America in 1776. Before 1776, who was ruling the America? Britishers was ruling the America. So this is the second country in which the democratic government was established. Then we are coming then one by one. What happens? Okay, in one country when the democratic government was established, then the next in the other country also, or in the neighborhood also, the people started to revolt to get the democracy, because they have seen for the some years in the neighboring country कि okay democratic government is ruling very properly, democratic government बहुत अच्छे से काम कर रही है, उधर लोगों को बहुत सारी फ्रीडम है, लोगों की बात सुनी जा रही है, लोग अपना प्रतिनिधि या अपना रूलर खुद चुन सकते हैं। तो देखा कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इसलिए धीरे धीरे नेबरिंग कंट्री में भी और विश्व के देशों में भी धीरे धीरे क्या हो गया, डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठने लग गई, और जो मोनार्की या दूसरे टाइप के रूलिंग सिस्टम चल रहे थे उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए, विद्रोह करने लग गए। तो जैसे इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, उसके बाद आया फ्रांस। अमेरिका गोट इंडिपेंडेंस in 1776 after the few years only. The French Revolution of 1789 gave the idea of liberty, equality, and the fraternity. These ideals inspired the democracy all over the world. Then in 1789, when revolution took place in the France, फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 किया जाता है, और उसने और लोग, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन काफ़ी लंबा चला, जो लुइस उधर का राजा था फ्रांस का, उसको हटाने के लिए, और वो आइडिया दिया, वो रिवोल्यूशन लोगों को आइडिया दिया, आइडिया ऑफ लिबर्टी की, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी की, ऑल पीपल शुड बी इक्वल इन द कंट्री, एंड आइडिया ऑफ द फर्टर्निटी की, एक समुदाय का अपना क्या महत्व होता है। दीज आइडियल इंस्पायर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इन आइडियो से और देशों में भी डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला। नाउ हियर सम इक्वलिटी, मीनिंग द फैक्ट ऑफ बीइंग इक्वल इन राइट्स, स्टेटस, एडवांटेज एटसेट्रा, कि इक्वलिटी होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं किसी राज्य में हम लोग नागरिक हैं तो उनको राइट्स के, उनके स्टेटस को, उनको सारे एडवांटेज मिलने चाहिए, कहीं उसमें आपस में ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द सेकेंड फेज ऑफ द डेमोक्रेसी in world. Now here some info fable is given. The Japan had moved towards democracy during the Taisho period in 1920. Japan much later got the independence in 1920. और फिर भी आज देख लो छोटा सा कंट्री होते हुए बहुत डेवलप और डेवलप्ड कंट्री की स्टेज में है, बिकॉज द पीपल और जापानीज आर वेरी हार्ड वर्क, वो बहुत हार्ड वर्कर है, उधर करप्शन नहीं है, हमारे देश की तरह सिस्टम नहीं है कि वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। वी गोट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड जापान गोट द इंडिपेंडेंस इन 1920 ओनली। So here for your information also कि in which year Japan got the independence in 1920. However, under the effective military rule in the years prior to the Second World War, the country adopted a new constitution during the post-war Allied occupation, with elections being held in 1946 कि उसके बाद military rulers हो गए थे, और फिर 1946 में उन्होंने अपना नया constitution adopt किया था। This was about some information only. Now we will discuss about the third phase in the contemporary world. What is the contemporary world? Contemporary word means today's word, कि जो आज का हम आधुनिक दुनिया देख रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं, ये इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में थर्ड फेज में डेमोक्रेसी आई थी। फर्स्ट फेज क्या था, जो सिर्फ ग्रीस में स्टार्ट हुआ था, द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देन सेकंड फेज में कहाँ से हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड, देन इट expanded in the America and then in the फ्रांस। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, उससे ऑल ओवर इंडिया में आइडियाज मिले, लोग इंस्पायर हुए। तो फिर उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, या जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार जो एंड हुआ था, उसके बाद में थर्ड फेज ऑफ डेमोक्रेसी का स्टार्ट हुआ था, एक्सपेंशन का। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड इन 1989, स्टार्टेड इन 1914, और 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। The period from the 1990 to 39 was referred as a temporary victory for democracy in Europe, especially in the countries like France and Germany. The Great Economic Depression of 1929 deeply hurt the democratic force in many countries. The 1930s became a decade of dictators in many European and Latin American countries. What happens after the end of the first war in 1909? From the 1909 to 39, in the period of 20 years,
There was the temporary victory for the democracy in Europe, especially in the countries like France and Germany, कि फ्रांस और जर्मनी में टेम्पररी विक्ट्री थी 20 साल में। इन देशों में डेमोक्रेसी का एमरजेंस हुआ, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ। बट व्हाट हैपेंस कि इन द 1929 देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन किसको बोलते हैं? आर्थिक मंदी। जैसे अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है, आर्थिक मंदी का दौर ऐसे लग रहा है कि लोगों को आ रहा है कि बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएगी। तो उसमें क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है खर्च करने का, अपनी लाइवलीहुड चलाने का। वैसा ही 1929 में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, बहुत आर्थिक मंदी आई थी। अब उस आर्थिक मंदी में क्या हुआ था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो कैपेबल नहीं हो पाई कि अपनी इकोनॉमी को ठीक से बचा सके। और क्या हो गया, देश में हाहाकार मच गया। और उससे क्या हो गया, जो कुछ लोग थे उन्होंने उस सिचुएशन का फायदा होकर लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़का दिया। और उसमें वो लोग फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के खुद डिक्टेटर बन के उधर के शासक बन गए। और क्या हुआ फिर उसमें मैनी यूरोपियन कंट्रीज में 1932 बिकेम डिकेड ऑफ डिक्टेटर्स इन मैनी यूरोपियन एंड लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। और बहुत सारे यूरोपियन और लेटिन अमेरिका के जो कंट्रीज थे उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूलर्स को हटा दिया गया और डिक्टेटरशिप का रूलिंग ज़्यादा हो गया था। द सेकेंड वर्ल्ड was ended with the victory for the democracy in the Western Europe, where the representative governments were established based on the general will of their people. However, the countries of the Central and the Eastern Europe became under undemocratic Soviet satellite states. In Southern Europe, a number of right-wing authoritarian dictatorships continued to exist. Okay, after the Second World War, that was ended in 1945, 1942 से 1945 96 तो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ था उसके बाद डेमोक्रेसी की विक्ट्री स्टार्ट हुई इन द वेस्टर्न यूरोप। कि वहाँ क्या हुआ, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट थी वो इस्टाब्लिश हुई और जनरल विल ऑफ द पीपल, लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़्यादा महत्व देने लगे। उधर क्या हुआ, डिक्टेटरशिप को हटा के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इस्टाब्लिश होने लगी। बट इन दिस period also, however, the countries of the Central and Eastern Europe became the undemocratic सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स। इनमें क्या हो गया, सोवियत सैटेलाइट स्टेट करके बना दिया, इनमें भी अनडेमोक्रेटिक बनने लगे और के डिटेक्टर्स उस पर रूल करने लगे थे। इन द साउथर्न यूरोप ए नंबर ऑफ राइट विंग अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप कंटिन्यू टू एक्सिस्ट। और इधर क्या हुआ कि जो राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट विंग, दो तरह के समुदाय वर्ल्ड में चलते हैं अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले। तो साउथर्न यूरोप में ऐसे लोग जो राइट विंग को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, ऐसी पॉलिसी को ज़्यादा महत्व देते, वैसे डिक्टेटर कंटिन्यू एक्सिस्ट हो रहे थे, नए किसे बन रहे थे। इन द Southeast Asia, political division in the both Korea and Vietnam escalated into wars. And then in Southeast Asia में what happens, the political division हो गया in the both Korea, कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में political division हो गया, पावर डिवाइडेड हो गया। एंड वियतनाम escalated into the wars, और इनमें क्या हो गया, आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। Various political powers like Western Bloc, China and Soviet Union were at rivalry to gain the upper hand over these regions. Thus, interests of both democratic and non-democratic forces clashed in both these countries. Then what happens कि when कोरिया में पॉलिटिकल डिवीजन हो गया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप आ गई, साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक कंट्री चलती, ऐसे वियतनाम में हो गए, आपस में लड़ाई लड़ने लगे। तो जो पॉलिटिकल पावर्स बने हुए थे वर्ल्ड में, क्या एक वेस्टर्न ब्लॉक बना हुआ था जिसको पश्चिमी देश बोलते हैं, अमेरिका है, चाहे ये यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी है, फ्रांस है, इनका एक अपना वेस्टर्न ब्लॉक बना हुआ है। चाइना इधर और एमरजेंस कर रहा था, वो अपने आप को एक शक्तिशाली देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाना चाह रहा था। एंड देन सोवियत यूनियन, जो अभी आज का रसिया है, वो पहले क्या था, सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर उसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था, यूएसएसआर। ये सारे लोग क्या करते, आपस में राइवलरी थे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंपिटिटर थे। और ये इन रीजन्स में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, गेन द अपर हैंड ओवर दीज रीजन्स, की इनको सहायता देकर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। थस इंटरेस्ट ऑफ बोथ डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्लैश इनटू द बोथ दीज कंट्रीज। और इन दोनों कंट्री में, वियतनाम में और कोरिया में क्या हो गया, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में क्लेश हो गया। क्यों हो गया, एक को
एक ग्रुप सपोर्ट करने लग गया दूसरे को, दूसरा ग्रुप सपोर्ट करने लग गया अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, और आपस में वो लड़ने लग गए। New waves of the democracy swept across Europe in 1970 and late 1980, when the representative government were instituted in the southern and the central and the eastern nation of Europe. Then the new wave of democracy came from the 1970 and up to late 1980। एक नया वेव आया, एक नई धारा सी, वेव किसे बोलते हैं, धारा की एक नई सी वेव चली। सब लोग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूट करने के लिए साउथर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेशंस ऑफ यूरोप में सब जगह लोग अपने आप आगे आए, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए जोर लगाया। Here with the map you can see like here, map of changing shape of the democracy. Now you can see democracy like, okay, this is the one with the colors showing the democracy in the 1900, then democracy between 1950 to 2000, and democracy after 2000 की क्या क्या आप देखोगे। 1950 में बहुत कम, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, इन्हीं में डेमोक्रेसी थी। उसके बाद में 1950 टू 2000 सिर्फ ये जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर साउथर्न अमेरिका के हैं, सम आर दीज कंट्रीज, ये कंट्रीज जो ग्रीन से आपको शो कर रहे हैं इन्हीं में आई कि आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी स्टार्ट कब हो गई थी, 1900 में, से पहले ही हो गई थी, लेकिन अमेरिका गोट इंडिपेंडेंस इन 1776। उसके बाद में डेमोक्रेसी इमरजेंस का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलग अलग एस्टेब्लिश होने का दौर बहुत धीरे चला। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन 1950 से लेकर 2000 इन द एरा ऑफ 50 ये सारे कंट्री है जो कम ही कंट्री है जिनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आफ्टर 2000 आप देख रहे हो जो जितने हैं इन सारे में काफ़ी कंट्रीज में ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। तो दिस वाज द अबाउट द emergence of the democracy all over the world. Soviet satellite state, the communist satellite state of Soviet Union. What are the Soviet state सैटेलाइट स्टेट की, ये कम्युनिस्ट की अपने एक सोवियत यूनियन करके उन्होंने बनाया था। देन स्क्लेट टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर, वर्स और मोर सीरियस। देन वेस्टर्न ब्लॉक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इट्स एलाइज, इन ये अलग अलग जो ग्रुप बने हुए थे वह। दिस इज अबाउट योर emergence of democracy all over the world. It was democracy expanded in the three phase. First phase the early, then the second phase, and then the third phase. तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी का ऑल ओवर द वर्ल्ड विस्तार हुआ, किसमें हुआ, थर्ड फेज में हुआ। Till now you go through the books, go through this video, try to understand this chapter and do the question answer. Be safe, stay at home and take care of yourself as well as your family also. आप चैंपियन हो भारतीय के, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है। साथ साथ में जो माहौल चल रहा है बाहर का, उसमें ज़्यादा न जाके अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान आपको देना है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप ज़रूर पढ़ाई करें, आपके पास बहुत टाइम है। अपनी बुकों से टच रहें। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, गो थ्रू द रीडिंग ऑफ द बुक्स, कि बुक की आप रीडिंग करें, हार्ड वर्ड लिखें, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 50% क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप दे सकते हो, बिकॉज यू हैव द लॉट ऑफ पावर। अपने आप के लिए कहना है बार बार कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, टुडे इज़ माई डे, गॉड इज़ विथ मी, रियली यू हैव द लॉट ऑफ पावर। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म होकर देन कम इन द स्कूल।